Hello students, I hope you all are good. Today I am going to explain you chapter 10 Motion and Measurement of Distances. Now there was a general discussion among children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. So one of the students told that he went to their native village. First he took train, then a bus, and finally he took a bullock cart to reach the village. Another student told that he traveled by an aeroplane, and one student told about the trip or the holidays in which he has done fishing in his uncle's boat. Now, the teacher, she has asked that all the students should read the newspaper articles, and in those articles there were mentioned about the wheeled vehicles, small wheeled vehicles, मतलब छोटे छोटे जो पहिए होते हैं उन व्हीकल्स के बारे में, that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. यानी उन छोटे छोटे व्हीकल्स के बारे में पढ़ना जिनके पास छोटे छोटे पहिए होते हैं, जो मार्स तक जाते हैं और मार्स की सॉइल पर ट्रैवल करते हैं. उसी समय पहेली स्टोरीज रीड कर रही थी अबाउट द एंशियंट इंडिया की पुराने समय में कैसे लोग ट्रैवल किया करते थे. And she learned about the story of transport. She learned that long ago people did not use any kind of transport, or there are no means of transport. People use their foot to travel from one place to another, and they carry goods on their back. Then they use animals for this transportation process from one place to another. In ancient times, boats were used in water bodies so that the people can travel or cross the water bodies. Now, what? They are not the boats which we are using today. There is just a log of wood in which they make a hollow cavity so that they can sit or put their luggage. Then later people learned how to use or how to put different pieces of wood together, and then they give different shapes to the boat. The shapes like the streamlined animals like fishes and other water animals. Then what happened? There is a great change in the modes of transport. Now how this change can happen? Because there was an invention of the wheel, पहिए का आविष्कार. The design of the wheel was improved over thousands of years. यानी पहले जैसे पहिए बने थे, आजकल के टाइम पे जो हमारे व्हील्स बन रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है. Animals were used to pull carts that moved on wheels. अभी भी हम लोगों को देखने को मिलता है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिस पे पहिए लगे होते हैं बड़े बड़े लकड़ी के, जो गुड्स को और पीपल को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats, and ships to transport them from one place to another. Then what happened? Then there was the invention of steam engine, and the rails were traveling through those steam engines. Then automobiles such as motor cars, trucks, and buses were used. Motorized boats and ships were also used as a means of transport on water. Then the early years of 1900 saw the development of aeroplanes. Right now अगर हम आज की बात करें तो aeroplanes are very famous. People mostly used to take aeroplanes if they are living far away from us. And the technology is improving day by day. Now we are having electric trains, monorail, supersonic aeroplanes, and spacecraft. And all this is the contribution of 20th century. We choose the transport according to the distance. Distance means दूरी. जितनी दूरी हमें ट्रैवल करनी है, जितना दूर हमें जाना है, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रांसपोर्ट को चूज़ करना पड़ता है. बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड. लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि उनको कितना दूर ट्रैवल करना है. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल. जब तक हमें ये नहीं मालूम कि डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, तब तक हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमको स्कूल पैदल जाना है या फिर हमको बस लेनी है, रिक्शा लेना है,
क्या करना है, हाउ वी विल डिसाइड when you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? Suppose मार्केट हमें जाना है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से जाना है, हमको ऑटो से जाना है, हमको स्कूटर यूज़ करना है, या फिर हम पैदल जा सकते हैं. सो इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़. इसलिए ट्रांसपोर्ट चूज़ करने के लिए हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पर हमको जाना है, जिस प्लेस पे हमको जाना है, हाउ फार इट इज़, वो कितना दूर है, एंड हाउ वी कैन रीच टू दैट प्लेस. बाय वॉकिंग, वी हैव टू टेक अ बस, वी हैव टू टेक अ रिक्शा, वी हैव टू टेक एन एरोप्लेन, और वी हैव टू यूज़ अ स्पेस क्राफ्ट. सो समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स whose length or width we need to know. तो कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ यानी जिनकी लंबाई और उनकी चौड़ाई हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है. सो पहेली और बूझो की क्लासरूम में क्या हुआ, देयर वॉज अ लार्ज डेस्क. ठीक है, बड़ी बड़ी डेस्क थी जिनमें 2 लोग बैठ सकते थे, एंड 2 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन वन डेस्क. सो इफ़ 2 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन वन डेस्क, दे हैव टू शेयर. शेयर का मतलब क्या है, दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए. लेकिन उसमें क्या हुआ, एक स्टूडेंट के पास ज़्यादा स्पेस हो गई और एक स्टूडेंट का सामान आ नहीं रहा था. दे बोथ वर फाइटिंग दैट मैम आई हैव नो स्पेस एंड ही इज़ हैविंग मोर स्पेस. सो द टीचर गिव द सजेशन कि यू जस्ट मेजर द डेस्क, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट यू जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स. So they agreed. So they Bujo loved to play gilli and danda, and he is having a new set of gilli and danda. He used that gilli and danda to measure the length of that desk and divide it into 2 halves. When he used to put the gilli and danda, 2 dandas and 2 gillis will be placed there. So it is very easy to divide 1 gilli danda one side, 1 gilli danda another side. They mark a line there, and now all settled, they get the same margin of space. Now what happened, after few days, that line which they have marked to divide the desk into 2 halves was wiped out, मतलब वो मिट गई. Now again they were fighting. So what happened, now Bujo has lost his old gilli and danda set. He has another gilli and danda set, and he used to put that gilli danda on that table again to divide the table into 2 halves. Now what happened, this time when he used to put the gilli danda set on the table, 2 dandas and 1 gilli was placed there and some space was left. So it means that to use gilli and danda, or to use any stick to measure the length or the breadth and divided the things, is not a correct option for the measurement. क्योंकि कोई भी गिल्ली हो, डंडा हो, कोई क्रिकेट का बैट हो या फिर कोई विकेट हो, उसके साइज़ में वेरिएशंस हो सकते हैं, तो उसके मेजरमेंट में भी वेरिएशंस हो सकते हैं. वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग ये कर सकते थे कि वो एक स्ट्रिंग ले सकते थे, यानी कि एक धागा ले सकते थे, एक पॉइंट मार्क कर सकते थे, वहाँ पर उस धागा को टाई कर सकते थे, और उसके बाद उस थ्रेड के थ्रू वो लोग पूरा जो लेंथ है वो मेजर करते, एंड देन they can fold the string and mark it into half, 1/4 और 1/8. ओके, सो इस तरह से वो एक एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकते थे और उस टेबल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते थे. अनदर ऑप्शन इज कि ज्योमेट्री बॉक्स में से वो लोग स्केल का यूज़ करके भी टेबल को मेजर कर सकते थे. Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. बूझो पढ़ रहा था कि पुराने ज़माने में किस तरह से लोग डिस्टेंसेस को मेज़र करते थे जिस टाइम पर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी. So there are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances, like tailor. टेलर को अगर कपड़े सिलने हैं तो he has to measure the length of the cloth and to stitch a कुर्ता, कि उस कुर्ते में से वो स्टिचिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है. इफ़ अ कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर, यानी इफ़ अगर कारपेंटर को कबर्ड का डोर बनाना है
सो ही हैज़ टू मेजर कि उसको कितने वुड की रिक्वायरमेंट है. A farmer needs to know the length and breadth or the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops. अगर एक किसान को अपने खेत में बीज बोने हैं तो उसको उस खेत की उस एरिया की लेंथ और ब्रेड पता होनी चाहिए ताकि वो उतने सीड्स परचेज कर सके बोने के लिए और कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ये जान सके. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चाहे कारपेंटर को डोर बनाना हो, चाहे किसी मैसन को वॉल खड़ी करनी हो, चाहे फार्मर को बीज डालने हो, हर एक को मेजरमेंट करना, उस एरिया का मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट मेजरमेंट हम कोई भी प्रोसेस को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. कोई आपसे पूछे कि आप कितने लंबे हो. यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. यानी अपने पैर से लेकर के अपने सर तक की आपको क्या करनी होगी, एक सीधी लाइन मेजर करनी होगी. हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, यानी अगर लंबाई हमें जाननी है तो हमें सीधा स्ट्रेट लाइन से मेजर करना होगा. वाइड मतलब कितना चौड़ा है उस केस में भी. हाउ फार, फार मतलब दूर. दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, कितना दूर है मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से. सो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, यानी इसमें एक चीज़ कॉमन है. दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. यहाँ पर क्या है, दो चीज़ों के बीच की दूरी. The two places may be close enough like the two ends of a table or they may be far apart. चीज़ दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, like Jammu and Kanyakumari. So let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances or lengths. Some measurements. We have to perform one activity. Students have to work in groups. What we have to do, students use their foot, यानी अपने पैरों का यूज़ करना है. क्या करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि जो क्लासरूम है उसकी लंबाई और चौड़ाई को मेज़र करने के लिए. करना क्या है, आपको वॉल के एक पॉइंट पे अपना पैर रखना है और उसको जोड़ जोड़ के आपको दूसरे एंड तक पहुंचना है और आपको ये देखना है आप कितने स्टेप्स में वहाँ तक रीच किया आपने. सो we will take 3 to 4 students to perform this activity. And while we are performing the activity, we will observe that the same room having same length and same breadth, but the steps will be different of different students. यानी जिसका पैर लंबा होगा उसके स्टेप्स कम आएंगे और जिसका पैर छोटा होगा उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. सेम एक्टिविटी 2 है, इसमें भी यही. इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू यूज़ आवर हैंड स्पैन, यानी हमें अपना पूरा हाथ लेना है फ्रॉम थंब टू द लिटिल फिंगर. पूरा हाथ खोल कर लेना है. हमें एक टेबल का मेजरमेंट करना है, लेंथ देखनी है कि टेबल की कितनी लेंथ है. अगेन वी विल टेक 3 to 4 स्टूडेंट्स, दोज हु वर मेजर दिस, एंड देन द रिजल्ट्स आर सेम. द स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग बिग हैंड, उनका हैंड स्पैन कम आएगा और जिनके हाथ छोटे होंगे उनके हैंड स्पैन ज़्यादा हो जाएंगे. यानी दीज आर नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेजरिंग द थिंग्स. सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. यानी मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको कंपैरिजन करना है एक अननोन क्वांटिटी का. अननोन क्वांटिटी कौन सी हो गई, जिसके बारे में हमें नहीं पता, ना हमें उसकी लेंथ पता है ना हमें उसकी ब्रेड पता है, और हमें उससे किसे कंपेयर करना है, जिसके बारे में, जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पता है. और जो क्वांटिटी फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में होता है जिनमें 1 पार्ट नंबर होता है और दूसरा पार्ट होता है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक्टिविटी 1 में लेंथ निकाली थी क्लासरूम की. इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट. Okay, so now study all the measurements which we have recorded in table 10.1 and table 10.2, and we have to see are all the measurements for the room using everybody's foot is equal. So वो मैंने आपको पहले ही बताया, the student those who are having big foot, the number of steps will be less, and those who are having shorter foot, the number of steps will be more. तो ये क्या है, equal नहीं हो सकता. सो अगर हमें एक प्रॉपर मेजरमेंट करना है, एक एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, सो वी हैव टू यूज़ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो लोगों से चेंज नहीं होंगी.
वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, एक सी ही रहेंगी. So now the rest of the topics we will discuss in the next video. Thank you everyone.